कर लेते हैं एक एग्जांपल। पहली एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहली एग्जांपल का पूरा पैसेज है, इस वक्त पूरा पैसेज है, ये कंप्लीट पैसेज। तो स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यहाँ से हमें दिखाई देता है। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 जो है, रीड पैसेज थॉरली। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है पैसेज को थॉरली रीड करना, मतलब इसको थॉरली पढ़ना। तो पढ़ते हैं पहले पैसेज को। थोड़ा सा मैं जूम करके एक स्लाइड पे दूसरी स्लाइड पे पूरा पैराग्राफ दिखाता हूँ। तो पढ़ते हैं हम इसको। देयर इज, ये है। तो देयर इज danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. When the policeman, say at Piccadilly Circus, steps into the middle of the road and puts out his hand, he is a symbol not of tyranny but of liberty. You may not think so. You may, being in a hurry and seeing your motor car stopped by this insolence of office, feel that your liberty has been violated. How dare this fellow interfere with your free use of the public highway? Then, if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all. You have submitted to a curtailment of the private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. Your liberty, ये your है, you नहीं है, your है। Liberty is not a personal affair only, but a social contract. It is an adjustment of interests in matters which do not touch anyone else's liberty. Of course, I may be as free as I like. If I choose to go down the Strand in a dressing gown with long hair and bare feet, who shall say me nay? You have the liberty to laugh at me, but I have liberty to be indifferent to you, and which heaven forbid, are wearing a tall hat, frock coat, and sandals, are going to bed late, or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. In all these and a thousand other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. But directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action is restricted by other people's liberty. I might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning. If I went on to top of the Helvellyn to do it, I could please myself, but if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone interferes with their liberty to sleep in quiet. There are a lot of people in the world, and I have to accommodate my liberty to their liberties. तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा, इसको कंप्लीट पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, अब वैसे मैंने जो पढ़ा मैंने तेज़ी से पढ़ा, लेकिन अब आप जब आपने पढ़ना होगा कोई पैसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत आराम से ठंडे दिमाग के साथ पूरे फोकस के साथ आप पढ़ोगे। तो पहली बात जो है इसमें, जो पैसेज को रीड करना थॉरली, और इसमें कहा मैंने, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने पहले ही पढ़ी हैं। क्या है रिक्वायरमेंट्स, ये स्क्रीन पर फिर मैं लाता हूँ। एग्जाम्पल में जो हमने बताया आपको, ये रिक्वायरमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज क्या है? लैंग्वेज है और बैकग्राउंड नॉलेज है, फोकस है। तो लैंग्वेज जब तक नहीं होगी तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो इस पैसेज को। जो पैसेज अभी आपके स्क्रीन में पे आया, तो उस जाहिर है इसको समझने के लिए लैंग्वेज तो पहली चीज़ है। दूसरी बात जो है वो है बैकग्राउंड नॉलेज। तो ये पैसेज आपके स्क्रीन पे है, तो इसमें इसका बैकग्राउंड नॉलेज यानी ये किसके बारे में बात करता है, तो कुछ न कुछ अंदाज़ा अगर आपको थोड़ा सा हो, जैसे यहाँ समझने के लिए कि पिकाडेली सर्कस, ये व्हेन द पोलिसमैन से एट पिकाडेली सर्कस स्टेप्स इनटू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड, ही इज़ अ सिंबल नॉट ऑफ टिरेनी बट ऑफ लिबर्टी। तो जाहिर है हमें पता चल जाता है कि ये एक पुलिस मैन है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ये तो ट्रैफिक पुलिस मैन है। तो बैकग्राउंड नॉलेज से ही अंदाज़ा लग जाता है हमें कि ये इस तरह से है। फिर तो इसमें टॉप में ही पे ही हम पढ़ रहे हैं, देयर इज़ अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक दीज डेज। तो जाहिर है जो
डेमोक्रेसीज हैं लिबरलाइजेशन की तरफ आ रही हैं। लिबरलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह से सोसाइटी जो है लिबरलाइज हो रही हैं और उनको मतलब कानून में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, बहुत चीज़ें आती हैं। तो इंसान को जितना पता होगा उतना इसको समझना आसान हो जाएगा। तो ये जो अगला स्टेप है इसमें वो है, ये हैं अब क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो हैं ये: व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे? इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ tyranny? What does insolence of office refer to? A reasonable person would reflect that if a policeman does not interfere with him, will interfere with no one other, and there will be traffic chaos. Does the statement agree with what is said in the passage? How is liberty a social contract? You have a liberty to laugh at me, but I have liberty to be indifferent to you. What does indifference mean here? Select one of the options below. ये फिर इसके क्वेश्चंस हैं। तो एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली हमने कैसे इसको सॉल्व करना। तो मैं उसी तरह से आगे चल। तो आपके स्क्रीन पे अब इस वक्त स्टेप्स हैं कि कौन से किस तरह से स्टेप्स लेने हैं। वो जो अभी मैंने बताया था आपको कि कुछ स्टेप्स क्या क्या हैं। तो पहला स्टेप जो है, रीड पैसेज थॉरोली। ये पैसेज है आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त। तो इसको थॉरली पढ़ना है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। ये अब बड़ा बड़ा स्क्रीन पे आ रहा था। ये दो और पैराग्राफ्स वो भी आ रहे हैं। तो हम क्वेश्चंस पे आ गए थे, तो क्वेश्चंस को हम दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला जो है, व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे। व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे। तो सबसे पहले मैं एक और बात पे आता हूँ। आपने पैसेज को जब रीड किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है अ शॉर्ट पॉज टू थिंक अबाउट टाइटल एंड कंक्लूजन। शॉर्ट पॉज टू थिंक अबाउट टाइटल एंड कंक्लूजन। तो ये आपका पैसेज आपने पढ़ा ये। तो अब एक शॉर्ट पॉज लेना है आपने, इसकी टाइटल और इसके कंक्लूजन में बात करना। जाहिर है ये जो है पैसेज जो है इस वक्त कि दुनिया में क्या लोगों की सोच किस तरह से चल रही है आज़ादी के लिए। लिबर्टी ड्रंक हो रही है दुनिया। तो इसके बारे में जनरली बात की है इसने कि किस तरह से लिबर्टी ड्रंक होना तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ड्रंक नहीं होना चाहिए। लिबर्टी तो है अपनी जगह पर, लेकिन आज़ादी किस हद तक होनी चाहिए उसमें लिमिट्स होती है। मतलब लिबर्टी विद सम curtailments, विद सम लिमिट्स, ये इसका टाइटल बन सकता है। फुल लिबर्टी जो है वो जो मतलब जो मैं चाहूँ वो करूँ, इस तरह का मुमकिन नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। उसी के बारे में यहाँ इसने लिखा है। तो और फिर कंक्लूड भी किया इसने कि ये आपके कंक्लूजन में है कि कई चीज़ जिसलिए लास्ट वाला पैराग्राफ जो लगभग ये कंक्लूड करता है इस बात को, ये कई जगह पर इंसान जो है पूरा फ्रीडम रख सकता है, पूरी आज़ादी रख सकता है। उसकी अपनी एक होल किंगडम हो सकती है जिसमें वो खुद रूल कर सकता है। लेकिन ये जब किंगडम यानी कि कुछ चीज़ों में हमें फुल फ्रीडम हो सकती है, हम बादशाह हो सकते हैं उस किंगडम में, उस एरिया में। लेकिन जैसे ही we स्टेप आउट करते हैं, जैसे ही उसमें से हम बाहर आते हैं, तो फिर क्या होता है, हम पर रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू होती है। और पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर पीपल्स लिबर्टी। तो वहाँ फिर मसले बन जाते हैं। तो किसी को अगर आज़ादी से कोई कुछ चीज़ सीखनी है, खास करके यहाँ ट्रोम्बोन की मिसाल दी है इसने, तो कुछ चीज़ अगर किसी ने सीखनी है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें आज़ादी है उसको। लेकिन अगर वो दूसरों को डिस्टर्ब करना चाहता है, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को से के शोर पैदा करके दूसरे जो नेबर्स हैं, उसके जो हमसाये लोग हैं, उनकी लिबर्टी में वो इंटरफेयर कर रहा है, तो जाहिर है वो कहेंगे कि नहीं तुम इंटरफेयर कर रहे हो। वो कह सकते हैं to blow the trombone interferes with their liberty to sleep in quiet। ये वो आपको रिमाइंड करा सकते हैं। तो there are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties। ये कंक्लूजन है।
there are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties. कंक्लूजन, लिबर्टी तो ठीक है, अपनी जगह पर लिबर्टी है, लेकिन बहुत से लोग हैं दुनिया में, तो मुझे अपनी लिबर्टी को एकोमोडेट करना है उनकी लिबर्टी के साथ। तो जाहिर है ये स्टेप 2 वाला ये है, कंक्लूजन भी आ गया और थोड़ा सा आइडिया आ गया आपको कि किस तरह से इसका टाइटल बन सकता है और ओवरऑल कंक्लूड क्या किया है, किस तरह से ऑथर ने किया है इस पैसेज के अंदर। तो फिर आता है हमारा अब स्टेप नंबर 3, स्टडी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रीडिंग देम। अब क्वेश्चंस को स्टडी करना है, ये है तीसरा स्टेप। तो ये है आपके स्क्रीन पर अब क्वेश्चंस आए हैं अब स्क्रीन पर। व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे, व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे, पहला ही क्वेश्चन, व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे। अब दूसरा क्वेश्चन, इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरेनी, इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरेनी। अब मैंने पैसेज को पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, तो मुझे एकदम आंसर्स आ रहे हैं दिमाग में। तो चूंकि अब अगले स्टेप पे नहीं आए हैं अभी, तो मैं इसी स्टेप पे हूँ जो हमारा इस वक्त स्टेप है, रीड द स्टडी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रीडिंग देम। तो स्टडी करना है क्वेश्चंस को उनको पढ़ के। तो इसलिए मैं आंसर्स यहाँ डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मुझे तो वैसे आंसर सीधे आ रहे हैं क्योंकि मैंने थारोली पैराग्राफ को पढ़ा है, तो मुझे आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहे हैं आंसर्स। तो इसी तरह से अगर आपने पहले पैसेज को पढ़ा होगा थारोली, तो आंसर्स फौरन आ जाएंगे आपके दिमाग में। व्हाट डज इंसोलेंस ऑफ ऑफिस रेफर टू, तो वही मैंने कहा, मुझे तो आंसर्स आ रहे हैं। अ रीजनेबल पर्सन वुड रिफ्लेक्ट दैट इफ अ पुलिसमैन डज नॉट इंटरफेयर विद हिम, ही विल इंटरफेयर विद नो वन अदर एंड देयर विल बी ट्रैफिक कियास। ये तो सीधा सेंटेंस उसमें से लिया है, एक स्टेटमेंट है आपके उस इस पैसेज में से सीधा उठाया गया है। ये यहाँ पर मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ आपको। Then if you are a reasonable person, you reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all। तो सीधा लगभग इसी सेंटेंस को उठा के यहाँ डाल दिया गया है। A reasonable person would reflect that if a policeman does not interfere with him, he will interfere with no one other and there will be traffic chaos। जाहिर है उसका पास्ट टेंस में सेंटेंस था, ये प्रेजेंट में डाल दिया है इसने क्योंकि आंसर इसी पे चाहता है ये। डज द स्टेटमेंट एग्री व्हाट इज सेड इन द पैसेज, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट में डाल के सीधा उसी पर सवाल किया है, उसके मुताबिक ही क्या ये स्टेटमेंट एग्री करता है जो पैसेज में कहा गया है। तो जाहिर है अगर आपको पैसेज समझ में आ गया हो आंसर दे सकते हैं। हाउ इज लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये अब अगले पैराग्राफ में है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये दिखाता हूं मैं। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये अगले पैराग्राफ में है, ये क्वेश्चन पूछे गए। यू हैव अ लिबर्टी टू लाफ एट मी बट आई हैव लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू, ये भी उसी में से सीधा, इसको इन्वर्टेड कामाज में ही इसके लिए इसने रखा क्योंकि उसमें से सीधा लिया गया है ये। व्हाट डज इंडिफरेंट मीन हियर, ये दिखाता हूं मैं पहले, ये इसमें से लिया गया है, ये यहाँ से। यू हैव द लिबर्टी टू लाफ एट मी बट आई हैव लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू, तो उसमें से सीधा उठा के लिया गया है इस पैसेज में से ये सेंटेंस सीधा पूरा। व्हाट डज इनडिफरेंट, यहाँ इनडिफरेंट वर्ड पर सीधा क्वेश्चन किया गया है, ये इनडिफरेंट। व्हाट डज इनडिफरेंट मीन हियर, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। अब ये जो क्वेश्चंस का आंसर जो इन 4 चॉइसेस में से आपने एक सेलेक्ट करना है, तो ये एक्चुअली वो जो मैंने कहा था MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आता हूँ अब क्वेश्चन टाइप्स पर भी बाद में दिखाऊंगा कि ये अलग अलग किस्म के टाइप्स हैं ये क्वेश्चन सारे, उस पर भी मैं आता हूँ। तो ये MCQ है, बस पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर इन पर भी इस पर भी बात करते हैं। अब ये अगले क्वेश्चंस फिर हैं आपके स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन, वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, डज द ऑथर मीन। अब ये भी आंसर वही MCQ में से एक क्वेश्चन है, वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, डज द ऑथर मीन।
He is a king. We are all kings. We don't like bondage. We have absolute liberty in certain matters and therefore have full freedom for any actions we like, if any, in those matters. तो एक्चुअल वहाँ क्या कहता है इस पैसेज में पढ़ के ये जो author है, in all these and a thousand other details you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. ये आंसर उस के लिए क्वेश्चन के लिए बनता है इधर इसमें से ही. ये when we aren't in our kingdom our liberty is not limited, true or false. ये एक और किस्म का when we aren't in our liberty our liberty is not unlimited. ये इस पे मैं आता हूँ आपको समझाने के लिए. तो ट्रू और फॉल्स में इसको आप लेना है. टू प्रैक्टिस ट्रोम्बोन आई कैन क्लाइंब अप अ हिल हेल्विलिन एंड एंजॉय इट, बट आई कैन आल्सो प्रैक्टिस एट होम विद फुल लिबर्टी. राइट, ये भी है राइट और रॉन्ग वाला क्वेश्चन. लाइफ इज एन, और ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन है. फिल विद अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. ये सूटेबल वर्ड आपने ढूंढना है पैसेज में से ही सीधा, इसी पैसेज में से ये आपको ढूंढना है. तो अब आते हैं अगले स्टेप पर. अगले स्टेप पर आते हैं, देखते हैं अगला स्टेप क्या है. तो अब आते हैं हम अगले स्टेप पर, यानी जो स्टेप नंबर 4 है, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन स्किपिंग डिफिकल्ट वंस. डिफिकल्ट वंस को स्किप करते हुए हम क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली डिफ़िकल्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट तो होंगे. मैंने तो स्टडी किया है इसको अच्छी तरह से, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे को आंसर्स इकट्ठे दूँ. स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 को मैं इकट्ठा कर दूँगा. अगर हो सका तो मैं समझा दूँगा किस तरह से डिफ़िकल्ट वंस को पहले ही आंसर्स दिए जाएँ. तो मैं दिखाता हूँ आपको पहले स्क्रीन पर वही दोबारा क्वेश्चंस जो हमने पढ़े. क्वेश्चंस के बारे में फिर हम आंसर्स पे भी आ जाएंगे. तो ये है क्वेश्चन जो पूछे गए थे. ये क्वेश्चंस, ये तो आंसर्स हैं. ये हैं क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस है व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे. व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे. अब इसका आंसर जो है, ज़ाहिर है हमने जो पढ़ा है आंसर इसका, इसी का आंसर बनेगा कि क्या है डेंजर. ये आंसर है वर्ल्ड हैज़ द डेंजर ऑफ गेटिंग लिबर्टी डंक टुडे. तो ये अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए. व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे, जाहिर है ये क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है. तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, व्हाट वाले क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर लाए थे, क्वेश्चंस जो इस तरह के क्वेश्चंस जो ये होते हैं WH क्वेश्चंस. जो WH क्वेश्चंस जो हैं WH से शुरू वर्ड होते हैं, और ये इनका जो आंसर जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि आंसर यस और नो में नहीं होता, बल्कि इसका एक आंसर बनता है एक तरतीब से, एक पूरा मतलब आपको आंसर इसका देना है ठीक से समझ के, और जवाब बना के आप अपनी, अगर आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हो तो आपको वर्ड्स को जोड़ना, सेंटेंस बनाना आना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, ये आपको आ जाना चाहिए. तो आंसर यहाँ इसका ये बनता है वर्ल्ड हैज़ द डेंजर ऑफ गेटिंग लिबर्टी ड्रंक टुडे. जाहिर है ये जो है ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है. वही मैंने कहा मीडियम शॉर्ट जा सकते हैं. मीडियम शॉर्ट ये इस तरह के मीडियम शॉर्ट 4 से 20 तक, या वेरी शॉर्ट 1 से 4 वर्ड्स तक. बस इतने ही लंबे क्वेश्चन. ये जो बाकी ये जो बड़े क्वेश्चन हैं शॉर्ट या लॉन्ग या वेरी लॉन्ग, ये आपको नहीं पूछे जाएंगे. शॉर्ट, लॉन्ग या वेरी लॉन्ग, यानी इस रेंज से 20 से बड़े, सीधे आपको समझना है कि 20 वर्ड से जो बड़े अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये एग्जैक्टली 20 नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से बड़े जो वर्ड्स हैं जी, आंसर्स हैं जी, उस 20 वर्ड से ज़्यादा आंसर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आमतौर से पूछे नहीं जाते हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट ही पूछा जाता है. व्हाट डेंजर द वर्ल्ड हैज़ टुडे, तो आंसर कितने वर्ड्स में आया जो अभी हमने देखा स्क्रीन पे,
वो है वर्ल्ड हैज़ द डेंजर ऑफ गेटिंग लिबर्टी ड्रंक टुडे। तो कितने वर्ड्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अगर इस कंपाउंड वर्ड को हम एक ही माने, इस कंपाउंड लिबर्टी ड्रंक को एक ही माने, तो 8 ही वर्ड्स हैं। तो जाहिर है ये मीडियम शॉर्ट में आता है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर मीडियम शॉर्ट में आता है। और WH क्वेश्चन मैंने कहा ये जो है यस नो या राइट रॉन्ग वाला इस तरह का आंसर नहीं होता है। इसमें एक सिंगल वर्ड में हम आंसर नहीं दे सकते इनको। अब है ये दूसरा क्वेश्चन, इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरनी? इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरनी? अब ये आया ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन। ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन, इज वाला क्वेश्चन जो इज से शुरू होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये इनको कहते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चंस। ये आपके स्क्रीन पर ऑक्सिलरी वर्ब्स के क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पहले इज से शुरू हुआ, कैन से, डू से। ऑक्सिलरी मैंने कहा था ये आपको पढ़ना चाहिए। मैं वैसे थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ आपको ऑक्सिलरी का। तो आपके स्क्रीन पे वर्ब है, वर्ब की दो फॉर्में हैं, एक है मैन वर्ब, एक है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैन वर्ब की बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिखता है, इसमें दो किस्म के ऑक्सिलरीज होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो ये आपके स्क्रीन पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज को मैं दिखा रहा हूँ, बी, डू और हैव। ये तीन किस्म के प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और इनकी फॉर्में भी लिखी है मैंने 5-5 में अलग करके। 5 फॉर्में बी की, 5 फॉर्में डू की, 5 फॉर्में हैव की। तो इन डू और हैव के एक एक वर्ड बनते हैं 5 फॉर्म में, एक एक वर्ड बन के 5 फॉर्में, डू की भी और हैव की भी। लेकिन बी के 8 वर्ड्स हैं टोटल, 8 वर्ड्स हैं, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 5 फॉर्म में, जैसे कि ग्रामेरियंस करते आए हैं पहले से। तो उसी तरह से मैंने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनसे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो उनका आंसर कैसे दिया जाता है उस पर हम बात कर रहे हैं। वही हम लाते हैं अभी स्क्रीन पर, तो देखेंगे। इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरनी? ये हमारा क्वेश्चन था, इज से शुरू होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब इज है, तो इज से शुरू होता है ये सिंबल ऑफ, इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरनी, यानी इज से शुरू होता है। तो इसको यस नो के अंदाज में भी हम आंसर दे सकते हैं, इज द पुलिसमैन अ सिंबल ऑफ टिरनी। तो जवाब में हो सकता है यस या नो, यस या नो। अगर पूरा डिटेल में लिखना है, यस द पुलिसमैन इज अ सिंबल ऑफ टिरनी, या नो द पुलिसमैन इज अ सिंबल ऑफ, इज नॉट अ सिंबल ऑफ टिरनी। ये इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं लंबा करके। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, नो द पुलिसमैन इज नॉट द सिंबल ऑफ टिरनी, ये इसका जवाब बनता है, क्योंकि जो हमने पैसेज में पढ़ा, जिस तरह से उसकी समझ बनती है, उसमें आंसर यही बनता है, नो द पुलिसमैन इज नॉट द सिंबल ऑफ टिरनी। तो शॉर्ट में इसका नाम नो से भी काफ़ी हो सकता है, नो, नो लिखा तो आंसर बन जाता है इतना सा भी। तो इस तरह के प्राइमरी ऑक्सिलरी जितने भी हैं उनका आंसर, या प्राइमरी या मॉडल्स जो है, जितने जो भी ऑक्सिलरीज से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, राइट रॉन्ग में दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। आगे आएंगे दूसरे क्वेश्चंस, वो भी उसमें भी हम देखते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह भी आ जाएगा। तो नो द पुलिसमैन इज नॉट द सिंबल ऑफ टिरनी, ये उसका क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस रेफर टू? जाहिर है ये WH वर्ड से शुरू होता है, व्हाट। तो व्हाट डज द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस रेफर टू? ये इंसोलेंस ऑफ ऑफिस किसको रेफर करता है, किसको रेफर करता है? तो ये इसका आंसर जाहिर है एक यस या नो में नहीं बन सकता, बाइनरी किस्म का आंसर इसमें नहीं है, यस नो राइट रॉन्ग वगैरह नहीं है, हमें आंसर पूरा देना पड़ेगा जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा है। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस रेफर्स टू पुलिसमैन हु इज़ रेगुलेटिंग द ट्रैफिक। ये जो हमारा पैसेज है, पैसेज में यही आंसर इसका बनता है। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस रेफर्स टू द पुलिसमैन हु इज़ रेगुलेटिंग द ट्रैफिक। ट्रैफिक को जो रेगुलेट करने वाला जो पुलिसमैन है उसी के लिए कहा है इसमें, इसमें पैसेज में इसको इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, इंसोलेंस ऑफ ऑफिस को उसी को कहा गया है। तो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, a reasonable person would reflect that if a policeman does not interfere with him, he will interfere with no one other and there will be traffic chaos. Does the statement agree what is said in the passage? Does the statement agree
व्हाट इज सेड इन द पैसेज, जाहिर है ये डज से शुरू होता है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी से शुरू होता है। तो डू वाला जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, तो डज उसी की एक फॉर्म है। तो डज द स्टेटमेंट एग्री व्हाट इज सेड इन द पैसेज, यानी कि ऑक्सिलरी से क्वेश्चन है तो उसको हम यस नो में आंसर कर सकते हैं, यस नो में इसका आंसर हो सकता है। ये पहले इसमें एक सेंटेंस लिखा है इसने, ये एक स्टेटमेंट है, इसी पर क्वेश्चन बनाया इसने। ए रीजनेबल पर्सन वुड रिफ्लेक्ट दैट इफ अ policeman does not interfere with him, he will interfere with no one other and there will be traffic chaos. Does the statement agree what is said in the passage? ये ऊपर जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट एग्री करता है जो पैसेज में कहा गया है, यानी पैसेज की बात है और ये जो इस स्टेटमेंट की बात है, क्या ये एक आपस में एक ही बात है? तो जवाब है यस ही, क्योंकि वो पैसेज में भी यही कहा जा रहा है और इसने भी यही जवाब दिया है और ये आंसर बनता है इसका, जो मैंने यहाँ लिखा, यस द स्टेटमेंट एग्रीज विद व्हाट इज सेड इन द पैसेज। यस द स्टेटमेंट एग्रीज विद व्हाट इज सेड इन द पैसेज, ये सीधा आंसर इसका। आप जाहिर है यहाँ यस से ही काफ़ी आंसर बन सकता है, यस तो आंसर हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इज़ अ लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये हाउ जाहिर है ये भी WH वर्ड है, WH वर्ड है, क्योंकि वो WH से शुरू नहीं होता है, लेकिन इसको माना जाता है WH वर्ड हाउ को माना जाता है, इसीलिए हमने मैं इसको भी लिखा है, WH वर्ड्स जितने भी हैं उनमें हाउ भी लिखा हमने, क्योंकि ग्रामेटिकली ये बिहेव करता है एग्जैक्टली जो बाकी WH वर्ड्स बिहेव करते हैं उसी तरह से। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है हाउ इज़ लिबर्टी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो जाहिर है इसका आंसर में एक या दो वर्ड्स में आंसर नहीं बन सकता, एक वर्ड में यस या नो, एक वर्ड की बात नहीं है, यस नो वाली जो बाइनरी किस्म का आंसर है, यस नो में आंसर देना, राइट रॉन्ग में आंसर देना, ट्रू फॉल्स में आंसर देना, वो पॉसिबल नहीं होता है इस तरह के WH क्वेश्चंस में। तो हाउ इज़ लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो लिबर्टी कैसे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर देना, जाहिर है ये लगभग एक सेंटेंस तो मग्गा ही मांगेगा आंसर के लिए, जो मैंने यहाँ लिखा है इंसान इसका आंसर। सिंस लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, रादर इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आंसर इसका बनता है, क्योंकि लिबर्टी एक एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि दूसरों के साथ हमने एडजस्ट करता है अपनी इंटरेस्ट को, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसीलिए तो ये है आंसर इसका। तो अगला क्वेश्चन, यू हैव अ लिबर्टी टू लाफ एट मी बट आई हैव लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू, व्हाट डज इंडिफरेंट मीन हियर, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। तो ये MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन जो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जो MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, जिसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना है। MCQs में जो चॉइसें दी गई होती हैं उनको उनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना होता है, वो ये हैं चॉइसें दी गई हैं यहाँ 4 ABCD, और आमतौर से 4 ही चॉइसेस दी जाती हैं, ये एक मतलब कन्वेंशन है, आमतौर से क्वेश्चंस के 4 ही चॉइसेस दी जाती हैं, इसमें भी अपनी अपनी किस्म की थ्योरीज हैं पीछे, लेकिन खैर उसमें तो हम नहीं जा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ मैं खाली ये बता रहा हूँ कि चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस में से एक सेलेक्ट करना होता है, तो ये चॉइसेस हैं इसमें, not different in something, carefree and unaffected by others opinion, having a difference। ये 4 इसके मतलब हैं लिखे हुए नीचे, तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो सबसे बेहतर है, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी बट आई हैव लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू, व्हाट डज इंडिफरेंट मीन हियर, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। तो नॉट डिफरेंट इसका बनता है मीनिंग या नहीं बनता है, ज़ाहिर नहीं बनता है। डिफरेंट इन समथिंग बनता है या नहीं बनता है, ज़ाहिर नहीं बनता है। केयर फ्री एंड अनअफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियंस, एक्चुअली यही बनता है, केयर फ्री एंड अनअफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, ये इसका आंसर बनता है। हैविंग अ डिफरेंस बी नहीं बनता, और यही मैंने लिखा है, इसको ही मैंने टिक किया है आंसर में, ये टिक इसके सामने आगे मैंने डाल दिया है, तो ये आंसर बन गया इसका, इसलिए इसको टिक करके रखा है। क्वेश्चन तो उसी तरह से लिखा है, इसको टिक किया, मतलब ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन,
We have a whole kingdom in which we rule alone. Does the author mean he is a king? We are kings. We don't like bondage. We have absolute liberty in certain matters and therefore have full freedom for any actions we like if any in those matters. और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये डज से क्वेश्चन है, लेकिन इसको नहीं मानना वो यस नो वाला क्वेश्चन, बल्कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है क्योंकि इसकी चॉइसेस दी हुई है नीचे। तो इन चॉइसेस में से आपने सेलेक्ट करना है। वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन। ये उस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया है इसमें, उसमें पैसेज में ये एक स्टेटमेंट है, वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, ये है वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ, इसी पे क्वेश्चन बनाया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, डज द ऑथर मीन, क्या इससे मतलब है ही इज अ किंग? ज़ाहिर है ये उसका मतलब नहीं है। वी आर ऑल किंग्स, ज़ाहिर है ये भी मतलब नहीं है। वी डोंट लाइक बॉन्डेज, ज़ाहिर है ये भी इसका मतलब नहीं है। तो ये डी है इसका मतलब। वी हैव एब्सोल्यूट लिबर्टी इन सर्टन मैटर्स एंड देयरफॉर हैव फुल फ्रीडम फॉर एनी एक्शंस वी लाइक इफ एनी इन दोज मैटर्स। यानी कुछ मैटर्स में हमें एब्सोल्यूट लिबर्टी है, तो उन्हीं के लिए इसने कहा है वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन। अगर पूरा पैसेज पढ़ोगे, पैसेज को समझोगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये डी जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है इसका, और यही मैंने टिक किया है यहाँ पर, डी। वी हैव एब्सोल्यूट लिबर्टी इन सर्टन मैटर्स एंड देयरफॉर हैव फुल फ्रीडम फॉर एनी एक्शंस वी लाइक इफ एनी इन दोज मैटर्स। ये आंसर बनता है इसका डी। अब 8वां क्वेश्चन, व्हेन वी आर्ट इन आवर किंगडम आवर लिबर्टी इज नॉट अनलिमिटेड, ट्रू और फॉल्स? When we aren't in our kingdom, our liberty is not unlimited. When we aren't in our kingdom, our liberty is not unlimited. When we aren't in our kingdom, जब हम अपनी किंगडम में नहीं हूँ, और लिबर्टी इज नॉट अनलिमिटेड, तो हमारी लिबर्टी अनलिमिटेड नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को मैंने ट्विस्ट कर दिया है, स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया। आगे क्वेश्चन ये है ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, आगे क्वेश्चन सवाल निशान इसमें आगे मैंने डाला, और ये जो आंसर्स जो क्या बोलते हैं उनको, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब वो क्वेश्चंस पेपर सेट होते हैं तो इस तरह का एंड पे लिखा होता है, और ये इस तरह एक्चुअली ये ट्रू और फॉल्स और आगे सवाल निशान, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। एक्चुअली ये असली में क्वेश्चन है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इज द स्टेटमेंट ट्रू और इज द स्टेटमेंट फॉल्स। इज से शुरू होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक्चुअली इज एक्चुअल इसका क्वेश्चन जो बनता है, इज द स्टेटमेंट ट्रू या ओब्लिक करके फॉल्स, या इज द स्टेटमेंट ट्रू और इज द स्टेटमेंट फॉल्स, ये पूरा मतलब इस तरह से। तो इज से शुरू होता है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी से शुरू होता है, तो आप कह सकते हैं आंसर में फिर ट्रू या फॉल्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप सीधा इस शार्ट में लिख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इस पर क्वेश्चन बनाया गया है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और ये मैंने शार्ट में लिखा, और क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में कई जगह पर इस तरह से लिखा होता है ट्रू और फॉल्स, राइट रॉन्ग, आगे यही सवाल निशान, यस नो आगे सवाल निशान, इसी तरह से सेम बिल्कुल इसी तरह से, या इससे भी शॉर्ट में होता है। जैसे ट्रू और फॉल्स के लिए लिखेंगे T/F, या लिखेंगे राइट रॉन्ग के R/W, या फिर लिखेंगे यस नो के लिए Y/N। तो शॉर्ट में भी लिखा जाता है, और ये से सवाल निशान आगे डाला जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन इसका पूरा मतलब होता है ऑक्सिलरी से शुरू। ये एक्चुअली जो भी पीछे स्टेटमेंट होगा उसके तहत वो ऑक्सिलरी बनता है, तो उस ऑक्सिलरी से शुरू होता है, तो जाहिर है फिर क्वेश्चन वही बाइनरी में बनेगा, चाहे यस नो में कहो, राइट रॉन्ग में कहो, ट्रू फॉल्स में कहो, वगैरह वगैरह किसी में भी कहो। तो यहाँ पर है व्हेन वी आर्ट इन आवर किंगडम आवर लिबर्टी इज नॉट अनलिमिटेड। यहाँ मैं खासकर आपको बताऊंगा कि यहाँ लिखा है इसने कि जब हम अपनी किंगडम में नहीं होते हैं, आवर लिबर्टी जो है अनलिमिटेड नहीं होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, एक्चुअली एग्जामिनर्स क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। यहाँ मैंने लिखा है नॉट अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, नॉट भी है और अनलिमिटेड भी है।
तो इसका मतलब है नॉट और अन को अगर हटाए, अनलिमिटेड मतलब नॉट लिमिटेड, तो ये बनता है नॉट नॉट लिमिटेड, नॉट नॉट लिमिटेड। अगर ये अनलिमिटेड के बजाय उल्टा करेंगे इसको और पिछले नॉट को हटाएंगे तो बनेगा इज लिमिटेड, इज लिमिटेड। थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। तो ये दो नेगेटिव्स है ना, नॉट भी है और अन भी है, तो ये दो नेगेटिव्स, अगर दोनों नेगेटिव्स को हम इकट्ठा करें, जाहिर है दो नेगेटिव्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये जनरली और मैथमेटिक्स में भी इस तरह का रूल है। तो ये स्टेटमेंट्स में भी इस तरह का रूल है कि दो नेगेटिव्स जब इकट्ठे आ जाते हैं तो वो स्टेटमेंट को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये लिमिटेड बन जाता है एक्चुअली इसका आंसर। व्हेन वी आर्ट इन आवर किंगडम आवर लिबर्टी इज लिमिटेड, when we aren't in our kingdom our liberty is limited, not unlimited मतलब limited, not unlimited मतलब limited। तो ये ट्विस्ट के लिए दो नेगेटिव्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि थोड़ा सा मुश्किल बन जाए क्वेश्चन का आंसर। तो हो सकता है ये एग्जामिनर आपको उसको माइंड को अपने आपकी सोच, अपनी समझ, आपकी गहराई या आपकी कंसंट्रेशन को चेक करना चाहता हो तो इस तरह का ट्विस्ट दे सकता है वो क्वेश्चन को। तो लेकिन आप याद रखना, जब भी दो नेगेटिव्स यानी एक नेगेटिव वर्ड नॉट, नेवर वगैरह वगैरह का वर्ड यूज़ किया जाए और दूसरे उसके साथ जो वर्ब है, जो वर्ब की निगेशन है, वर्ब को जो नेगेटिव बनाया गया है उसको यूज़ किया जाए, तो जब उन दोनों को आप हटा दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है वर्ब जो है, वो वर्ब की सेंस पॉजिटिव आ जाती है। तो यहाँ भी वर्ब की सेंस फिर पॉजिटिव आ जाएगी, लिमिटेड बनेगा। तो पूरा क्वेश्चन ये बनता है व्हेन वी वांट इन आवर किंगडम आवर लिबर्टी इज लिमिटेड। तो जब हम अपनी किंगडम में होते हैं तो हमारी लिबर्टी जो है लिमिटेड हो जाती है। तो जाहिर है ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। व्हेन वी आर्ट इन आवर किंगडम, जब हम अपनी किंगडम में नहीं होते हैं, आवर लिबर्टी इज लिमिटेड, हमारी लिबर्टी लिमिटेड हो जाती है। अपनी किंगडम से बाहर जब निकलते हैं तभी तो लिमिटेड हो जाती है। तो यही है नॉट अनलिमिटेड, यानी कि हमारी लिबर्टी फिर अनलिमिटेड नहीं रहती है, अनलिमिटेड नहीं रहती है। जब हम अपनी किंगडम से बाहर निकलते हैं तो अनलिमिटेड नहीं रहती है, हमारे अपनी किंगडम के अंदर है हमारी लिबर्टी अनलिमिटेड। और जब हम अपनी किंगडम से बाहर निकलते हैं तो हमारी किंगडम, ये जो हमारी लिबर्टी जो है अनलिमिटेड नहीं रहती है, तो मतलब वो लिमिटेड रहती है। तो जाहिर है इसका आंसर ट्रू है और यही मैंने यहाँ इसका लिखा है। When we are not in our kingdom, our liberty is not limited, true, मतलब ट्रू लिखा है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स को हटा के क्वेश्चन को सीधा शॉर्ट कर दिया, ट्रू में आंसर लिखा है इसका। अगला क्वेश्चन, टू प्रैक्टिस ट्रोम्बोन आई कैन क्लाइंब अप अ हिल हेलविलिन एंड एंजॉय इट, बट आई कैन आल्सो प्रैक्टिस एट होम विद फुल लिबर्टी, राइट। अब ये फिर वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह के है, उसमें ट्रू फॉल्स का यूज किया गया, यहाँ राइट और रॉन्ग का यूज किया गया। ये खाली राइट से मतलब है राइट और रॉन्ग। तो क्वेश्चन को समझना इस तरह से भी आता है, इस तरह से भी पूछा जाता है। क्वेश्चंस को बिल्कुल एक ही वर्ड्स के साथ जोड़ दिया जाता है और आगे सवाल या निशान डाल दिया जाता है। राइट, तो राइट से मतलब है इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। तो राइट के आगे सवाल या निशान से पूरा सेंस बनती है इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। तो ये सवाल जो स्टेटमेंट क्या है, टू प्रैक्टिस ट्रोम्बोन आई कैन क्लाइंब अप अ हिल, ट्रोम्बोन को प्रैक्टिस करने के लिए मैं चढ़ सकता हूँ एक हिल पर, हेलविलिन जिसका नाम है, एंड एंजॉय इट, और इसको एंजॉय कर सकता हूँ। बट आई कैन आल्सो प्रैक्टिस एट होम विद फुल लिबर्टी, और लेकिन मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ इसको अपनी घर पर भी फुल लिबर्टी के साथ। जाहिर है फुल लिबर्टी के साथ अलाउड नहीं है घर पर, ये हमने पैसेज में पढ़ा, क्योंकि वहाँ फिर नेबर्स आ जाएंगे और वो कहेंगे कि तुम इंटरफेयर कर रहे हो हमारी लिबर्टी के साथ। तो टू स्लीप इन क्वाइट, यानी कि क्वाइट में स्लीप करने से हमारी उस लिबर्टी को में आप इंटरफेयर कर रहे हो। ये मैं दिखाता हूँ पैसेज को दोबारा स्क्रीन पे लाके। ये if I went on to top of the Helvellyn to do it, I could please myself, but if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone interferes with their liberty to sleep in quiet, और इसका स्टेटमेंट एंड भी था इस तरह से, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड आई हैव टू अकोमोडेट माई लिबर्टी टू देयर लिबर्टी। जाहिर है तो उनकी स्लीप इन क्वाइट की लिबर्टी के साथ वो इंटरफेयर करने की बात पर आ जाएगा, और इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये, बट ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रोम्बोन की प्रैक्टिस करने के लिए फुल लिबर्टी पर हूँ, ये क्वेश्चन राइट नहीं है बल्कि रॉन्ग है। ये
ये जो राइट के आगे सवाल निशान है, तो आंसर ये है नो नॉट राइट। नो नॉट राइट मतलब रॉन्ग। और अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको पूरी तरह से, आंसर कैसे लिखना है। नो नॉट राइट एक्चुअली राइट के अगेंस्ट जवाब बनता है, राइट के आगे सवाल निशान के अगेंस्ट जवाब बनता है नो नॉट राइट। लेकिन आंसर में देखा जाए तो नो नॉट राइट का मतलब है रॉन्ग, रॉन्ग, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रॉन्ग लिखा, क्योंकि आंसर्स में आएगा राइट और रॉन्ग ही, बाकी कोई आंसर नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन, लाइफ इज एन, और आगे ये ब्लैंक का क्वेश्चन है, जाहिर है ये एक और पैटर्न है क्वेश्चंस का। ये मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर, पैटर्न क्वेश्चंस का पैटर्न, ये ब्लैंक्स वाला। ब्लैंक्स में कोई भी किसी भी तरह का ब्लैंक हो सकता है, उसमें आपको वर्ब फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ड्स वगैरह वगैरह जो भी है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं अभी इसी पर फोकस करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं इसी को फोकस करके। लाइफ इज ए या एन। अब ए या एन क्वेश्चन में ये है कि आप ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो आ वाली साउंड का हो, यानी जिसके साथ एन आ सकता है, या बाकी जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है। इसलिए ए ऑब्लिक एन दिया है क्वेश्चन में पहले ही। आपने वर्ड ढूंढना, मतलब ये इसको यूनिवर्सलाइज किया गया है कि ए एन की सेंस से आपको अंदाज़ा नहीं लगना चाहिए, आपको एक्चुअल समझ आनी चाहिए वर्ड उसमें कि वो कौन सा वर्ड है। तो अगर आपको उसको पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको एक वर्ड आ जाएगा जो मैं बताता हूं आपको अभी, वो है वर्ड एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट, लाइफ इज एन एडजस्टमेंट। जाहिर है ये ए जो वावल साउंड से हो तो एन इसके पीछे आएगा, लाइफ इज एन एडजस्टमेंट। तो ए और एन वैसे ही है, क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, तो हमने खाली एडजस्टमेंट ही लिखना था, तो हमने एडजस्टमेंट को लिखा और नीचे इसको अंडरलाइन भी कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आंसर देते हैं आप, जो वर्ड आप डालेंगे या एक से ज़्यादा वर्ड्स डालेंगे तो उनको अंडरलाइन कर देना, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको फटाफट पता चले। और ये जो एडजस्टमेंट का वर्ड आया वो यहाँ से है। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये यहाँ से एडजस्टमेंट, लाइफ इज एन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, दूसरों के साथ हमें एडजस्ट करना है, तो आंसर यही बनता है, लाइफ इज एन एडजस्टमेंट। हो सकता है कोई और वर्ड भी आ जाए, आ सकता हो बीच में, तो मुमकिन है, लेकिन ये जो है मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया। तो इस तरह से ये आपकी एग्जाम्पल एक कंप्लीट होती है। फिर हम अगली एग्जाम्पल पे आ जाएंगे।